non-linear regression, problems faced during research and their remedies, sampling and estimation of sample size, measuring social realities, and in this topic, in this session, the quantitative research design was discussed by the resource person. Interdependence technique, exploratory factor analysis, moderation and mediation. Elevating academic writing with analog precision. In this case, the wonderful discussion was done on the basis of MS Word. A number of tips and shortcuts were discussed by the resource person. How to prepare the thesis and research article using the amazing functions of the MS Word. Then qualitative research paradigm, it was on the basis of application of appreciative inquiry and action research by the resource person. And one of the design as a survey method was discussed by the resource person, and philosophical reflection about the social science research. So these tasks almost we have covered. This will guide you how to proceed your session. Friends, Dr. Kiran Lata Dengwal has been requested to discuss about comprehending qualitative research methods and their impact on knowledge construction. And the second session, I suppose the first one also will be very interesting to discuss about the enhancing research skills through open source digital tools, ICT tools, freely available on the net. You can install and number of functions you can accomplish using the digital tools. मैडम का बहुत कंट्रीब्यूशन है ऑनलाइन टीचिंग में, एंड वी आर एसोसिएटेड इन मैनी वेज टू डेवलप द मूक्स ऑल्सो एंड नंबर ऑफ ओपन ऑनलाइन प्रोग्राम्स. Dr. Kiran is faculty in the Department of Education and former Additional Dean, Academic Cell, University of Lucknow. She has written several articles on different aspects related to education for leading magazines and journals of the country to disseminate and diffuse knowledge. She has authored and edited 24 books. Can you imagine? 24 books. And also produced more than 68 unusual research papers. She has delivered lectures in various universities and institutions and colleges in India, Europe, Canada, South Africa, Indonesia, Thailand, Malaysia, and Myanmar. Can you imagine? She has been honored with the Shiksha Ratan, Shiksha Gaurav, Uttarakhand Gaurav Samman, Best NCC Officer, and DG NCC Commendation Award by the various institutions. She is coming from the, she has been the army officer as well. So बहुत सारी चीज़ें parallel हैं. I came from Indian Railways, the largest organization, public sector organization in India, in fact in Asia. Besides being an effective and admired teacher, Dr. Kiran is an able administrator holding prestigious post at the University of Lucknow, and she is the first lady NCC officer for imparting training to NCC candidates as associate NCC officer in University of Lucknow. In addition to her primary responsibility towards the University of Lucknow, she has held the position of President Literary Club, Vice President of the Teachers Association, Provost and Deputy Coordinator Admission, and a number of accomplishments in his favor.
and she has a good command over computer education and technology and have developed many open educational resources, e-content educational videos for teachers and students. She is an expert for evaluation of the e-content in Central Institute of Educational Technology, NCRT. She herself has produced and uploaded numerous e-content, and this is to her credit that she has continues to be in the team. She is also a member and resource person for the developing the open educational resources subcommittee in the National Council for Teachers Education. She is the founder, editor-in-chief of the TechnoLearn Journal, an international journal of educational technology, and an associate editor of the many other journals and a member of the International Advisory Review Board in the Asian Journal of Management, Sciences, Education in Japan. So friends, many more achievement in her favor, and वी आर ऑनर्ड कि आप हमें वक्त दे पाई और आप 2 दिन से हमारे साथ हैं. सो फ्रेंड्स, वेलकम प्रोफेसर किरण लता, इन डायनेमिक एजुकेशनिस्ट. सो इट्स टाइम टू आइए तशरीफ लाइए. थैंक यू सो मच. फ्रेंड्स, मैडम 2 सेशन हमारे साथ रहेंगी और फ़ौरन ही लखनऊ के लिए ट्रेन पकड़नी है अराउंड 2. सो 1:30 के आसपास वी विल लाइक टू मेक ए रिक्वेस्ट, मैडम कंक्लूड कर लेंगी और जैसा अगर कोई और डेवलपमेंट होता है तो आई विल कंटिन्यू टू स्पीक एंड शेयर विद यू. थैंक यू सो मच. Good morning, all of you. And thank you so much, Professor Khan, for inviting me. And it is my privilege to interact with young minds. And I also need to do some research that I am seeing many empty chairs in front rows. What is the logic behind that? Just I will also do research, qualitative as well as quantitative. So let's begin with today's interaction, and that is about the qualitative research, and in second half I'll discuss about the digital tools which are related to the qualitative as well as quantitative research. So before starting, just I would like to take some test. आप लोग ऑलरेडी कई दिन पढ़ चुके हैं, तो लिया जाए थोड़ा सा. एक दो आवाज़ ही आई हैं. ओके. तो क्योंकि जस्ट वन रिवीजन इज़ वेरी नेसेसरी कि हमें पता चले कि हम आपको कितना बताएं, क्या बताएं, क्योंकि रिसर्च क्या है, एक बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि जिसके बिना भी ना जिया जाए और जिसके साथ वही दोनों चीज़ें होती हैं, न रहा जाए और न सहा जाए वाला. तो कैसे आप इसको, बिकॉज आई विल गिव यू सम प्रैक्टिकल टिप्स टू डू योर रिसर्च. बहुत सारी चीज़ें आप सब किताबों में पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, जान लेंगे. मुझे लगता है वो सब बताने की ज़रूरत नहीं है. क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है एक सेंटेंस में आपको बता सकते हैं, 1.5 घंटे की ज़रूरत नहीं है. लेकिन हम आपको वो टिप्स देंगे जो आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ भी करेंगे आप उसमें. सो नाउ आई एम स्टार्टिंग माई फर्स्ट क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ डूइंग एनी रिसर्च. बताइए पहला स्टेप क्या होता है. नहीं, हम लोग तो टीचर्स प्रोड्यूस करते हैं तो बड़ा सिखाते हैं कि 1 by 1.
के लिए कुछ करना है, हम किसी तरह पीएचडी कर लें वही बहुत है ना। फैक्ट तो यही है ना, एक बार एडमिशन ले लिया बस किसी तरह से हमारे 3 साल 4 साल में पीएचडी हो जाए, बाद में तो एंड आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंसेस। तो हम आंसर दें? नहीं मिला आंसर आप लोग को? मतलब सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज टू फाइंड आउट द वेरिएबल्स। वेरिएबल समझते हैं? वेरिएबल जैसे आप में से कई लोगों ने आंसर दिया दैट फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहाँ से इमर्ज हो रही है? जहाँ पे वेरिएशन है, जहाँ पे एक जैसी चीज़ें नहीं हैं आपके किसी भी, चाहे सोसाइटी हो, चाहे इनसाइड द क्लासरूम हो, आउटसाइड द क्लासरूम हो, चाहे कहीं भी हो। मीन्स कैसे समझाते हैं, एक लड़की का पिता मान लीजिए अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना चाहता है, वहाँ वेरिएशन ना हो तो वो किसी को समस्या आएगी? कुछ भी नहीं, किसी भी खानदान में रिश्ता तय हो, लेकिन खानदान में वेरिएशन, लड़के में वेरिएशन, उसके पॉकेट मनी में वेरिएशन, उसके जॉब में वेरिएशन, हर जगह है। तो जहाँ वेरिएशन है वहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ से रिसर्च स्टार्ट होती है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी रिसर्च। वेरिएबल ढूंढते हैं आप, और उसके बाद क्योंकि जहाँ पे सारी चीज़ें समान है वहाँ रिसर्च का स्कोप होता ही नहीं है। नाउ टेल मी द लास्ट स्टेप ऑफ द रिसर्च, बताइए। सॉल्यूशन, और ठीक है, शेयरिंग द सॉल्यूशन, गुड, और आउटकम ऑफ द रिसर्च, पब्लिशिंग एंड फाइंडिंग्स, वेरी गुड। यानी आपका जो लास्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? सपोज आपने रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद आपने एक सरदर्द की गोली बनाई, मान लीजिए आपने कहा कि ये सरदर्द की गोली बड़ी कामयाब है और हम इसको वो करेंगे, लेकिन आपने बना के उसको एक बस्ते में बंद करके रख दिया, तो वो आपकी रिसर्च कहलाएगी क्या? बिल्कुल नहीं, जब तक कि आप उसको सोसाइटी में पेशेंट्स को देंगे नहीं। आपने दिया, मान लीजिए 10 लोगों को वो गोली दी, आपने रिसर्च करके जो बनाई थी, और उसके बाद आपने देखा कि 4 या 5 लोगों को ही फायदा हुआ, बाकी लोगों को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? फिर दोबारा आप रिसर्च करेंगे कि ये जो 5 लोग थे, ये डिस्टर्ब कर रहा है शायद ना, कि ये 4 और 5 लोग जो ठीक नहीं हुए हमारी गोली से, कारण क्या था? देन अगेन व्हाट यू विल डू, अगेन यू विल डू द रिसर्च। यानी लास्ट स्टेप ऑफ एनी रिसर्च इज डिसेमिनेशन ऑफ द फाइंडिंग्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट और लास्ट स्टेप के बीच की पूरी कहानी आपकी रिसर्च होती है। वो रिसर्च करते कैसे हैं, हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, कैसे हम इन चीज़ों को करें, दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन, और हम इस पर बहुत बार ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग जब रिसर्च करते हैं, आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस, कि जब हमने रिसर्च स्टार्ट किया, आधा काम हो चुका था, उसके बाद लगा कि जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे ये तो कहीं से भी हम इसका डेटा ही कलेक्ट नहीं कर पा रहे, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो अचानक से दिमाग में क्या आया कि हम क्यों ना ऑब्जेक्टिव्स, डेटा पहले कलेक्ट कर ले, जैसा डेटा कलेक्ट होगा हम ऑब्जेक्टिव्स वैसे ही बना लेंगे। और अक्सर हम लोग भी यही करते हैं, मेरे ख्याल से आप में से भी अगर आए होंगे इसे, क्यों? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक होके क्या करते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव्स बना लेते हैं, टाइटल बना लेते हैं, हम तो देश विदेश और पता नहीं कहाँ कहाँ पे रिसर्च कर लेंगे, लेकिन जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है तब हम थोड़ा सा परेशान होते हैं। तो इसलिए ये परेशानी ना आए आपको, इसके लिए हम क्या करेंगे, इट इज़ नॉट वर्किंग, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ये आगे नहीं चल रहा। ऐसा करें कि आपके लैपटॉप में सम प्रॉब्लम इज देयर, लॉक हो गया। नहीं कर रहा ना ये कुछ,
नॉट रिस्पॉन्डिंग। मेरी पेन ड्राइव है आपकी? नहीं, ये डायरेक्ट लगा है, इस पे चल रहा है। रुकिए, हम है, पेन ड्राइव है मेरे पास, आप उसको लगाइए अपना, तो हम पेन ड्राइव से अलग ही। अब तो चल रहा था ये, अब चल रहा है। हाँ हाँ ठीक है, अब चल रहा है। ठीक है, चलने लगा। नहीं होगा फिर आप देख लीजिएगा। स्लाइड शो में प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसे ही रहने दे, काफ़ी बड़ा है स्क्रीन, चलेगा। हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके, चलने लगा। नाउ दीज आर द 6 इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स ऑफ द रिसर्च इम्प्लीमेंटेशन। ये जो इम्प्लीमेंटेशन की बात हम कर रहे हैं, ये सब आपके स्टेप्स हैं, सब कैसे करें उसको हम अभी छोड़ देते हैं। नाउ आई एम कमिंग टू द स्पेसिफिकेशंस ऑफ अ रिसर्चर इन द प्रेजेंट एरा। व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स यू नीड टू बी अ रिसर्चर। अभी क्या है आपके पास, यू आर लिविंग इन द टेक्नोलॉजिकल एरा, और टेक्नोलॉजी के एरा में अगर आप जाके किसी लाइब्रेरी में 10-10 घंटे लगा रहे हैं अपने एक सेंटेंस के कंटेंट को ढूंढने के लिए, देन व्हाट विल हैपन, it will take approximate 10 years to complete your research. So how you can use various kinds of digital tools, various kinds of present era skills and strategies to complete your work. जो बहुत ही बुद्धिमानी से, वाइज तरीके से अपना एक विजनरी विजन रखते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से विद इन 3 इयर्स अपनी रिसर्च को कर सकते हैं। कैसे करना है ये आपको हम बस टिप्स आज देंगे। अब इसमें देखिए हमने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि व्हाट टाइप ऑफ एबिलिटीज यू शुड हैव फॉर कंडक्टिंग योर रिसर्च। Now see, ability to communicate. What to communicate means whatever you are going to communicate to the society in the form of your research. अब यहाँ पे जो रिसर्च की हम बात कर रहे हैं वो क्या है, जस्ट focus on your topic. Just think about your topic, that what you are going to do in future. ज़रूरी नहीं कि जो बात हम बता रहे हों वो आपके में इम्प्लीमेंट हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप घूम फिर के आएंगे तो लगेगा यस दिस आई कैन इम्प्लीमेंट ड्यूरिंग माई रिसर्च। तो एबिलिटी टू कम्युनिकेट, वर्क इन टीम, सॉल्व प्रॉब्लम्स, एनालिसिस एंड कॉन्सेप्चुअलाइज, ये सारी चीज़ें बड़ी नॉर्मल हैं, लेकिन जब आप देखिए कि हम टीम वर्क की बात करते हैं तो वी नेवर बॉदर अबाउट टीम वर्क, वी नेवर बॉदर अबाउट कोलैबोरेटिव वर्क। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें लगता है ऐसा ना हो कि हमारा रिसर्च का जो काम है वो दूसरा अपने में हमसे पहले कर ले, तो क्या होगा, बेकार हो जाएगा हमारा काम करना। नो, जो असली रिसर्च होती है वो बिना कोलैबोरेशन के हो ही नहीं सकती है, क्योंकि अगर आप कोलैबोरेट नहीं करेंगे यू विल नॉट बी एबल टू वर्क ऑन योर रिसर्च। अब इसमें भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हाउ टू मैनेज योर सेल्फ, और ये जो आपका जो स्टेज है ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है। इस समय हम लोग क्या कहते हैं ना कि ना हम इधर के होते हैं ना उधर के, ना हम घर के हो पाते हैं ना हम इंस्टीट्यूशन के ना रिसर्च के। क्यों? क्योंकि माइंड किस में लगा रहता है कि पैसे भी कमाने हैं, करियर भी बनाना है, हमारी जॉब भी लग जाए, अभी हायर एजुकेशन का फॉर्म आ रहा है, तो बहुत सारे हमारे दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो ऐसे उसमें हम कैसे करें चीज़ों को, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस पे आई होप यू ऑल लाइक टू लिसन स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज, अच्छा लगता है सुनना। तो अब इसमें जैसे एक बार और ये रिसर्च का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो है जो स्टोरी एक हम आपको सुना रहे हैं। ये आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस कंप्यूटर। हाँ, ये कुछ ये हैंग हो रहा है बार बार, इसको हटा ही दीजिए आप, मैं पेन ड्राइव दे रही हूँ, आप अपना लगा। तो ये जो शॉर्ट स्टोरी हम आपको बताने जा रहे हैं, दिस इज़ अबाउट अ प्रोफेसर। प्रोफेसर ने एक बार क्या हुआ, वो क्लास में आए, तो आप जैसे ही स्टूडेंट्स बैठे हुए थे क्लास में, और आप लोगों ने व्हाट्सएप पे कई बार ये हो सकता है स्टोरी पढ़ी भी हो, सुनी भी हो। जब वो क्लास में आए तो आप जैसे ही स्टूडेंट्स ने उन्होंने कहा कि सर हम लोग बहुत परेशान हैं, समझ में नहीं आता कि इस समय हम लाइफ में क्या करें और किस मोड़ पे है, समझ में नहीं आता कि हमें किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो प्रोफेसर ने कहा ओके आई टेल यू। उन्होंने एक कांच का जार लिया, कांच के जार में उन्होंने सबसे पहले गोल्ड बॉल्स डाल दी, फिर गोल्ड बॉल्स डालने के बाद उन्होंने कहा
कि आपने देखा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा, बच्चों ने कहा हाँ। फिर उन्होंने कहा कि बच्चों ने कहा कि हाँ सर, अब ये कांच का जार पूरा भर गया है। फिर उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे पेबल्स लगाए। अब हम कर लेंगे, चल रहा है ना आपका ये सही से? ठीक, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। फिर उन्होंने पेबल्स डाले, फिर उसमें जितनी स्पेस थी पेबल्स उसमें एडजस्ट हो गए। तो बच्चों ने कहा सर अब तो बिल्कुल भर गया है, अब क्या करें? तब उन्होंने कहा ओके ओके, यही टेक्नोलॉजी है कि जिस समय आपको ज़रूरत होती है उस समय वो फेल हो जाती है। हाँ, इसमें आ ही नहीं रहा है, मुझे लगता कॉपी नहीं हुआ है। अभी तो मैंने किया था इसको, एक्चुअली इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह सब थे ना, तो इसलिए मुझे लग रहा था इसमें से करो।
इसमें नहीं है। कुछ प्रॉब्लम आ रही मुझे लगता है इसको, ये होगी क्या? ये खुल रहा है? यस मैम, है वही वाली? यस मैम, वो यही कुछ है, यही है। ओके 113 स्लाइड है मैम। अभी ठीक, थैंक यू। ओके सॉरी, बीच में डिस्टर्ब हो गया। तो प्रोफेसर ने फिर उसमें पेबल्स डाली और कहा कि फिर स्टूडेंट से पूछा व्हाट हैपन, तो स्टूडेंट सेड दैट नाउ इट इज फिल्ड। फिर उन्होंने क्या किया, सैंड डाली उसमें, और सैंड डालने के बाद जितनी स्पेस थी वो भी फिल हो गई। तो स्टूडेंट्स ने कहा कि सर अब तो ये फुल हो गया, अब बताइए आप कहना क्या चाह रहे हैं कि टू हुम वी शुड गिव प्रायोरिटी इन आवर लाइफ। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर कुछ नहीं कहा और उन्होंने 2 कप कॉफ़ी ली और उसमें डाल दी। अब देखिए कि सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्लेस बना के आ गई। फिर उन्होंने कहा कि दिस जार रिप्रेजेंट आवर लाइफ। हमारी लाइफ में जो हमारी गोल्ड बॉल्स होती हैं वो प्रायोरिटीज़ होती हैं, यानी कि हमारे लाइफ में हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको देनी चाहिए? हमारी फैमिली, हमारी हेल्थ, जिसको कि हम 3H भी बोलते हैं कि हमारा कॉग्निटिव 3H मीन्स हेड, हार्ट एंड हैंड्स, कॉग्निटिव एस्पेक्ट, एफेक्टिव एस्पेक्ट एंड साइकोमोटर एस्पेक्ट। तो उन्होंने कहा हम अपनी हेल्थ को, अपने घर को, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा अपनी पढ़ाई को। क्यों? क्योंकि वो ही एक आधार है हमारे आगे के फ्यूचर के लिए। फिर उन्होंने, बच्चों ने पूछा सेकंड पे, वो जो आपने पेबल्स डाली, उन्होंने कहा दीज आर द स्मॉल स्टफ ऑफ आवर लाइफ, कि अगर हम अपने लाइफ में छोटे छोटे जो चीज़ें हैं, कि जब हम सबको प्रायोरिटी दे लेते हैं तो नेक्स्ट क्या होता है कि हम अपनी लाइफ को थोड़ा लग्जीरियस बनाना चाहते हैं कि हमारे पास गाड़ी, बंगला, घर, ये सब भी हो। तीसरा उन्होंने कहा जो सैंड है दैट रिप्रेजेंट्स अननेसेसरी थिंग्स ऑफ आवर लाइफ, कि हम जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं जो हमारे मतलब की नहीं होती हैं, और जब हम उनके पीछे भागते हैं तो आप देखिए यानी कि एक अननेसेसरी का कंपटीशन विद आवर कलीग्स, विद आवर बैचमेट्स, उसके नंबर ज़्यादा ना आ जाएं, वो कहीं सेमिनार ज़्यादा अटेंड ना कर ले, कहीं वो ये ना कर ले, वो इन चीज़ों में रहेंगे तो क्या होगा कि हमें जो चाहिए हम लाइफ में वो अचीव नहीं कर सकते। उन्होंने कहा इसको वाइस वर्सा करके देखिए, आप सैंड को अगर सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए लाइफ में, तो क्या आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए उसके लिए स्पेस बचेगी? सैंड एक बार डाल दीजिए तो आप पेबल्स और वो कभी नहीं डाल सकते उस जार में। फिर बच्चों ने कहा कि ठीक है, वो तो सर समझ में आ गया, एंड इट्स ग्रेट दैट नाउ वी आर अवेयर ऑफ दैट टू हुम और टू व्हाट वी शुड गिव प्रायोरिटी। तो फिर उन्होंने कहा, बच्चों ने पूछा कि ये आपने लास्ट में 2 कप कॉफ़ी डाला, इसका क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा हमारी लाइफ कितनी ही फुलफिल क्यों ना हो, हमें अपनी लाइफ में 2 मिनट या 10 मिनट का टाइम ऐसे ज़रूर निकालना चाहिए कि हम अपने नियर और डियर वंस को समय दे सकें, उनके साथ हैप्पीनेस को फील कर सकें। वाई आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस स्टोरी? PhD कितनी ही आपके लिए हैवी लोड हो, कुछ हो, लेकिन लाइफ में अगर आपने जीवन के वो 10 मिनट नहीं निकाले तो आप PhD नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जब 1 साल 2 साल निकल जाता है, उसके बाद जो एक हैवीनेस फील करने लगते हैं, अरे उसकी तो सबमिट भी हो गई, हमारा तो अभी डेटा ही कलेक्ट हो रहा है। ये सारी चीज़ें, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। हो सकता है जो ए हैं उनके पास वैसा समय अधिक हो जो समय आपको चाहिए, आपके पास ना हो। बीइंग फीमेल कई बार होता है घर की जिम्मेदारियां ज़्यादा है, बीइंग मेल हो सकता है आप कमाने में लगे हों तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो। तो आप ऐसे कंपटीशन में कभी मत जाइए लाइफ में। तो जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो वी हैव दीज structures, we have timeline, we have many other things also, and everything depends on your supervisor also and to you also. So we should have few skills. ये skills जो हमने आपको बताई जल्दी जल्दी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें टाइम का भी थोड़ा वो देखना है कि we should have these things in our life as a academic personality, कि हमारे पास हम कैसे करें, कौन सी ऐसी skills हैं जो हमारे पास होनी चाहिए, कैसे हम इनको करें। तो ये जो ऑब्जेक्टिविटी है, जो रिसर्च की हम बात करते हैं उसमें ऑब्जेक्टिविटी होना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एंड प्लानिंग इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। प्लानिंग क्यों होनी चाहिए?
प्लानिंग क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जब अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे, जब हम अपने स्कॉलर्स को स्टार्टिंग से ही कहते हैं कि आप हमारे रूम पे आइए, तो आपका एक डेडलाइन का चार्ट बना होना चाहिए. डेडलाइन मीन्स when you will submit your first chapter, second chapter, third chapter and overall work. चाहे आप आज से 10 साल बाद का दीजिए, लेकिन आप डेडलाइन लगा के जाइए यहाँ पे. जब वो डेडलाइन लगा के जाते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं मैम 3 साल में तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, हम कैसे नहीं तो काम को करेंगे. फिर एक एक करके जब वो डेडलाइन लगाते हैं, फिर वो देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि हम इस काम को टाइम पे कर पाए कि नहीं कर पाए. यानी वहीं से स्टार्ट होता है क्या? सॉट एनालिसिस. What are, as a researcher, what are my strength and what are my weaknesses? किन चीज़ों पे हमें काम करना है, किन चीज़ों को छोड़ना है, ये प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है किसी भी रिसर्च में. इसके बाद आप देखिए कि जो हमारे आज के इन टेक्नोलॉजिकल एरा, व्हाट इज़ द चेंजिंग सिनेरियो. हम कोई भी रिसर्च कर रहे हों, कैसे भी कर रहे हों, जैसे हम बात करें एम्पिरिकल. एम्पिरिकल का मतलब है कि जो डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, इसलिए हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं. लॉजिकल, साइक्लिकल, ये सारे रिसर्च के ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. एनालिटिकल एंड क्रिटिकल. अब यहाँ पे जो हमें ये सब हमने छोड़ दिया. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए है कि रिसर्च के हमें स्टेप्स पता हैं, रिसर्च कैसे करनी, क्या करनी है. सर ने जैसे बताया कि यू ऑल हैव गॉन थ्रू ऑल दोज थिंग्स. तो अब यहाँ पे हमको बताइए कि अगर मान लीजिए आपको हमने ये क्वेश्चन पूछा, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च, क्या आंसर है आपके पास? ये तो पढ़ चुके हैं ना, इस पे तो मुझे लगता है सोचने की ज़रूरत भी नहीं है. व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ, आप यू ऑल आर फ्रॉम सोशल साइंसेस. फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे अभी नाम हमें नहीं, आप प्लीज़ अपना नाम बताएंगे. रितेश. रितेश से हमने कहा कि इस क्लास में जितने लोग बैठे हैं, आप थोड़ा बताइएगा कि इनकी पर्सनालिटी कैसे है. ओवरऑल अगर हम आपसे क्वेश्चन करें कि इनकी पर्सनालिटी कैसी है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे है. पीछे तबस्सुम बैठी हैं, इनसे हमने कहा कि थोड़ा एक एवरेज हाइट बताइएगा कि आपकी क्लास में जो एवरेज हाइट है स्टूडेंट्स की, वो कैसी है. दोनों की सोच में थोड़ा सा फर्क होगा, ठीक है. आप जब हमें आंसर देंगे तो थोड़ा सा आप हो सकता है डायलेमा में हो कि कैसे बताएं. ये तो हमारा दोस्त है, अगर हम बता देंगे कि ये तो बड़ा इंट्रोवर्ट है, किसी से बात ही नहीं करता, ये नहीं, तो आपको शायद थोड़ा हिच होगी. लेकिन जब तबस्सुम आंसर देंगी तो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कि नहीं, एवरेज हाइट इतनी है हमारी क्लास की, इसमें तो गलत हो ही नहीं सकता है. एम आई करेक्ट? ये क्या है? अब इन्होंने जो स्टार्ट किया सोचना, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट किया करता है आपकी अप्रोचेस की, ऑन द बेसिस ऑफ योर टॉपिक, ऑन द बेसिस ऑफ योर क्वेश्चन. यहीं से हमारा क्या होता है, क्वांटिफाई करना और क्वालिटेटिव. अब यहाँ पे जब हम टाइप्स की बात करते हैं, तो क्वेश्चन मेरा फिर से आपसे है कि इन दोनों को अगर हम ऐसे ही सिंपल, जो हमने आपको क्वेश्चंस दिए, तो इसमें अगर हम टाइप्स की बात करें तो कौन सी तरह की रिसर्चेस थी हैं? अगर सिंपल एक जनरल वो बताइए. क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. Are they types of research? These are the approaches. ठीक है, लेकिन हम टाइप्स पूछ रहे हैं. डिस्क्रिप्टिव, ओके, ठीक है. चलिए, अभी एक क्वेश्चन है मेरा कि मान लीजिए डॉक्टर जाकिर हुसैन के एजुकेशनल थॉट्स पे रिसर्च करनी है. ये कौन सी रिसर्च होगी? हिस्टोरिकल, केस स्टडी. एनीवन एल्स? कंटेंट एनालिसिस. टाइप्स ऑफ रिसर्च पूछ रहे हैं हम अभी, यानी कि बहुत कुछ पढ़ना बाकी है आप लोगों को. इसका आंसर तो क्विक होना चाहिए था. आप में से बहुत से लोग JRF होंगे, नेट होंगे, पढ़ा होगा. करेक्ट आंसर नहीं मिला. Theoretical, basic, no. Explanatory. हम टाइप्स ऑफ रिसर्च पूछ रहे हैं, आप लोग कहीं कहीं और घूम रहे हैं. ओके, चलिए. जब हम किसी के थॉट्स, आइडियाज, ओपिनियन पे रिसर्च करते हैं, तो ऐसी रिसर्च को क्या कहते हैं? फिलोसॉफिकल रिसर्च. सही है कि नहीं? ठीक है.
सिंपल, आपको टाइप्स की बात कर रहे हैं, आपके पास बहुत, क्योंकि देखिए आप रिसर्च को जितना गहराई से जितने बुक्स पढ़ेंगे आपके पास उतने आंसर होंगे। हम आपको बिल्कुल जनरल आइडिया बता रहे हैं कि अगर आपसे कभी पूछा जाए, क्योंकि आज आप उधर हैं कल आप इधर आएंगे, जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपकी ऑडियंस के लिए एक ऐसा आंसर होना चाहिए जो एक लेमैन को भी समझा सके, ठीक है। तो जब हम किसी के, तो ऐसे हम लोग बहुत से करते, गांधी जी के, नेहरू जी के, हम विवेकानंद जी, सबके थॉट्स ओपिनियन, तो ये सब क्या है, फिलोसॉफिकल, हम दर्शन पे, हम उनके सोच विचार आइडियाज पे वर्क करते हैं। फिर दूसरा आता है हम पास्ट पे करते हैं, दैट इज हिस्टोरिकल, ठीक है। हम प्रेजेंट पे करते हैं डिस्क्रिप्टिव, हम फ्यूचर पे करते हैं एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। सिंपल, इसमें हमें ज़्यादा सोचना नहीं है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप इसको डिटेल में पढ़ते हैं। हम यहाँ पे, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ आपको क्वालिटेटिव पे लेके आना है, अभी ज़्यादा हम नहीं बताएंगे। और एक मिनट हम टाइम भी थोड़ा, जब थोड़ा नियर बाय हम लोग पहुँचेंगे तो बता दीजिएगा हमको। तो ये 4 तरह की ऑलमोस्ट हमारा वर्क होता है, फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल। अब इसके अंदर भी बहुत सारी तरह की होती हैं, कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि एक सेम टॉपिक पे यू कैन डू क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एंड ऑल्सो ट्रायंगुलेशन, मिक्स भी कर सकते हैं आप। कैसे कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर ऑब्जेक्टिव्स। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर मान लीजिए, कई बार क्या होता है, हम लोग थॉट्स पे वर्क करते हैं तो भी हम क्वांटिफाई कर लेते हैं। अभी हमने जैसे रितेश जी से कहा पर्सनालिटी देखिए, अब जो स्टैटिस्टिक्स के लोग होते हैं वो बड़ा कंफ्यूज होते हैं। प्रोफेसर राजीव पांडे आए थे ना आपको बताने, पहली बार हम उनके पास स्टैट्स की कुछ चीज़ पूछने गए, मैंने कहा आई एम वर्किंग ऑन पर्सनैलिटी और पर्सनैलिटी ऑफ एनसीसी कैडेट्स ऐसे करके, तो कह रहे हाँ बढ़िया है करिए। तो मैंने कहा सर उसमें हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करवानी, तो बड़ा चौंके थे उस समय। वो कहते आप इसको क्वांटिफाई कैसे कर सकती हैं, पर्सनालिटी तो पर्सनालिटी होती है, मीन्स देयर इज डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड मेजरमेंट, ये आप सब लोग जानते हैं। तो उन्होंने कहा पर्सनालिटी को हम असेस करते हैं, हम इसको कोई मेजर तो करते नहीं कि उसकी इतने किलो पर्सनालिटी है या इतने लीटर पर्सनालिटी है। तो तब हमने उनको बताया कि हम सोशल साइंसेज में, क्योंकि वो क्या है, एक साइंस का फील्ड है। फिर उनको धीरे धीरे जब चीज़ें चेंज होती हैं, आज से 20 साल पहले की हम बात बताएं, फिर उन्होंने लगा कि नहीं ये चीज़ें तो हम कैसे हम जो हमारी क्वालिटेटिव चीज़ हैं उनको क्वांटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो फिर उनको जब बताया कि हम लोग 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स को यूज़ करते हैं, फिर उसको क्वांटिफाई, फिर हम उससे पता कर सकते हैं वेदर दैट पर्सन इज एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। तो इस तरह की चीज़ें, यानी आपके पास ये 4 तरह के ऑप्शन है, पास्ट, प्रेजेंट और फिलॉसफी और इस तरह की चीज़ों के लिए। तो ये हो गया आपका रिसर्च का क्राइटेरिया। अब इसके बाद हम आते हैं कि अगर रिसर्चर की हम क्वालिटी देखें, ये हम आपको भेज देंगे तो देख लीजिएगा कि क्या क्या होती हैं, क्यों किसको हम कहते हैं। नाउ आई एम कमिंग टू द कि जो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं वो क्या होनी चाहिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू रिलेट इट विथ व्हाट, विथ डिजिटल टूल्स। अगर आपको डिजिटल टूल्स यूज करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, दैट व्हाट आर द 21st सेंचुरी स्किल्स फॉर अ रिसर्चर। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम कहते हैं, आप लोग डिजिटल टूल्स यूज़ करते हैं, एंड always in the beginning I say these 2 lines which are very very important, whether you have to develop your PowerPoint presentation or you have to develop any kind of open educational resources और कुछ भी करना है आप, तो उसके लिए हम हमेशा कहते हैं कि संभल कर चलते रखते हैं कदम, संभल कर रखते हैं कदम इस जहाँ में। इस जहाँ मीन्स ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है, whenever you are using digital tools in your virtual world, तो संभल कर रखते हैं कदम इस जहाँ में, क्योंकि पता है नफस का यहाँ पर हिसाब देना पड़ता है, पल पल का यहाँ पर हिसाब देना पड़ता है। एज अ रिसर्चर यू आर अकाउंटेबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग वट एवर यू आर राइटिंग इन योर थेसिस। क्यों, आपको भी पता है कि अब आप बच नहीं सकते हैं, आप एक पेपर भी लिख रहे हैं तो वो प्लेगरिज्म चेक होगा, और जब चेक होगा तो आपको बता दिया जाएगा कि इतनी सिमिलर, इवन
when you are using chat GPT and all AI tools also. वो अब AI टूल्स के भी डिटेक्टर आ गए हैं जो आपको बता देते हैं कि इतना तो आपका, अगर हम जनरल चेक कर रहे हैं तो 20% आ रहा है, लेकिन जब AI टूल्स का यूज़ करके आपने किया तो 48% आ रहा है, यानी आप वहीं फंस गए. तो हमेशा ध्यान रखिए कि when you are starting using all these digital tools, when you are trying to implement all these 21st century skills, you need to know about each and everything related to these digital tools. Now, 21st century skills means you should have effective communication skill. Whenever you are copying or pasting, तो वहाँ पे क्या करना है, आपकी अपनी कम्युनिकेशन स्किल काम आएगी कि हाउ टू राइट दैट कंटेंट, हाउ टू रीराइट दैट कंटेंट, हाउ टू पैराफ्रेज दैट कंटेंट इन योर रेफरेंस related to your topic. Then, and there are many other things also inside this particular skill. Then second, digital age literacy. Whenever you are going to choose any tool, what type of skills you should have. क्योंकि हम क्या करते हैं, मेरा दोस्त ये टूल यूज कर रहा है तो हम भी कर लें. नो, everything depends on your topic, that what type of things you are going to use. अभी एक एग्जाम्पल आपको दें कि आपने सेमिनार में जाना है, आपने अपने जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं, वैसे साइंस में ज़्यादा स्कोप होता है, लेकिन जब आप अपने रिसर्च से रिलेटेड कोई पेपर बनाते हैं और उसको सेमिनार में प्रेजेंट करते हैं तो आप किसके थ्रू करते हैं जनरली? इन जनरल कौन सा टूल यूज़ करते हैं? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सबसे ईजीएस्ट है, वो है सब है. और आप क्या करते हैं, आपको फोटोज़ जो अच्छी लगती हैं आप कहाँ से ढूंढते हैं? गूगल से ढूंढते हैं. गूगल से ढूंढते समय आप क्या माइंड में रखते हैं कि कोई भी फोटो मिली आपने कॉपी और पेस्ट कर दिया? इज दैट ट्रू? हाँ, आप नहीं करते हैं. बताइए क्या करते हैं फिर. आप अपना नाम बताइए पहले. जी मैम, मेरा नाम राहुल कुमार है. फैकल्टी ऑफ एजुकेशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. ओके, डॉक्टर अजीत कुमार राय सर. ओके. तो सर मैम, जब हम कोई भी चीज़ें, इमेज या कोई भी कंटेंट इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो वहाँ पे हमें ये भी देखना रहता है कि ये सीसी लाइक उसका हमें लाइसेंस है कि नहीं, उसको यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, अदरवाइज प्लेगरिज्म होगा. तो वहाँ पे आता है. तो जैसे कुछ भी हम सर्च कर रहे हैं तो सीसी, इसका पर्टिकुलर फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रहा है. क्रिएटिव कॉमन्स. क्रिएटिव कॉमन्स होना चाहिए, तब हम उसे यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं यूज कर सकते. वेरी गुड. कोई भी इमेज कहीं से भी उठा करके नहीं यूज कर सकते. ठीक है, ठीक, थैंक यू. यानी आप अवेयर हैं कि आप कोई भी फोटो को उठा के कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने प्रेजेंटेशन किया और हम वहाँ पे सामने बैठे हैं, हमने कहा अरे राहुल जी आपने तो ये मेरा कॉपीराइटेड फोटो यूज़ कर लिया है, हम आपको कोर्ट तक ले जाएंगे. तब आपके पास क्या आंसर होगा, है ना? तो यू शुड हैव आंसर फॉर ऑल दीज क्वेश्चन. ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम कभी भी ध्यान नहीं देते हैं. यानी यू शुड हैव डिजिटल एज लिटरेसी. आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम फोटो को सेलेक्ट करें, कौन सी फोटोज़ हैं जो हम अपनी थीसिस में लगा सकते हैं, या जो फोटोज़ हमें इंटरनेट से मिल रही हैं उनको हम एडिट करके कैसे अपने प्रेजेंटेशन में या थीसिस में यूज़ कर सके. उसका डेमो आप लोग याद रखिएगा, लास्ट में हम एक डेमो देंगे, आपको बताएंगे. इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है इन्वेंटिव थिंकिंग एंड हाई प्रोडक्टिविटी. इसको बाद में और हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये सारी स्किल्स जो आपकी हैं ये कैसे, हाउ यू कैन यूज़ इन योर रिसर्च. यानी रिसर्च को जब हम स्टार्ट करते हैं, आप में से हो सकता है फर्स्ट ईयर हो बहुत सारे लोगों का रिसर्च में, तो जब हम रिसर्च करते हैं तो हम सोचते हैं इफ़ वी विल गैदर इन्फॉर्मेशन, इधर से उधर से लिया हमने, हमारा रिसर्च हो गया. बट दैट इज़ नॉट कॉल्ड रिसर्च. रिसर्च क्या है एक्चुअल में? ये सारी चीज़ें क्या हैं? दीज आर नॉट रिसर्च. बट वॉट इज़ रिसर्च? रिसर्च इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस कि आपको कब, कहाँ, कैसे चीज़ों को यूज़ करना है. रिसर्च के क्वेश्चंस कब होंगे, कब हम उनको गोल्स बनाएंगे, कब हम उसका जो एक फॉलो करेंगे पूरा प्रोसीजर, फिर कैसे उसको डिवाइड करेंगे, कैसे हाइपोथेसिस लिखेंगे, एवरीथिंग इज़ देयर स्टेप बाय स्टेप. इसको हम बहुत ही डिटेल में नहीं बताए बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू. साइक्लिक होता है, सब कर लेते हैं. अब यहाँ पे ये देखिए कि हम कुछ चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहा भी गया है कि देयर इज़ ओनली वन लॉ विच इज़
नॉट चेंजेबल, दैट इज लॉ ऑफ चेंज। चेंज होता रहता है, आपकी इवन रिसर्च हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो। चेंज कैसे होता है? जो आज हो रहा है वो आज से 10 साल बाद नहीं होगा, जो 10 साल बाद है वो उसके 10 साल बाद नहीं होगा, ये सारे चेंजेस। एज अ टीचर वी नीड टू अडॉप्ट ऑल दीज चेंजेस whenever we are teaching or learning or we are doing research. इस समय जोर किस चीज़ पे है उसको हम ज़्यादा फोकस और एम्फसाइज करने जा रहे हैं आपके साथ, कि कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जस्ट सी फ्यू स्लाइड्स की कॉमन प्रॉब्लम क्या आती है जब हम रिसर्च करते हैं। आई होप यू ऑल हैव ऑल्सो फेस्ड दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। क्या होता है कॉमन प्रॉब्लम में? कि टाइम ही नहीं है, रिसर्च करें कब? जैसे ही हम लाइब्रेरी जाते हैं, अरे टाइम ही ख़त्म हो गया। जैसे हम सर्च करने बैठते हैं इंटरनेट पे, तब तक रील्स देखने लगते हैं और उसके बाद जो एक्चुअल टाइम होता है वो चला जाता है। तो दिस इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम। और ये जो आजकल का बीमारी और एडिक्शन हो गया है कि जब हम काम करने बैठते हैं तो वो हमारा माइंड डाइवर्ट करने के लिए जो साइकोलॉजिकल टूल्स बने हुए हैं कि कैसे आपके माइंड को क्रिप कर लेते हैं वो। तो आप कैसे उसी टाइम में से अपना टाइम निकाले एक्चुअल रिसर्च के लिए। आप देखिए कि अगर आपने 1 घंटे के टाइम में फ्रूटफुल वीडियो भी देख लिया आपने रिसर्च से रिलेटेड, इट मीन्स इट इज़ वर्थ। लेकिन आपने फ्रूटफुल वीडियो भी नहीं देखा, कंटेंट भी नहीं ढूंढा, कुछ भी नहीं किया और पूरा रील्स देखने में समय गंवा दिया, तो हो गई रिसर्च। और मुझे लगता है ये प्रॉब्लम आप सब आजकल फेस ज़रूर कर रहे होंगे। तो कैसे अपने को कंट्रोल करना, ये भी एक कला है। फिर इसके बाद सबका जो रिसर्च का या पढ़ने का कमरा होता है, मुझे लगता है ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। जब हमने भी रिसर्च किया था तो 4 बोरे हमारे ऐसे ही उसके निकले थे रफ पेपर्स के। एक भी पेपर नहीं फेंकते थे कब कौन सा पेपर काम आ जाए। तो दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग। उसके बाद जितना हम सोचते हैं उतना कंफ्यूज हो जाते हैं रिसर्च में। क्यों? क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम जो सोच रहे हैं ज़रूरी नहीं कि वो हमारी रिसर्च में फिट बैठे। अब जो सोर्सेज होते हैं, हम क्योंकि क्वालिटेटिव की बात करने जा रहे हैं आपसे, तो क्वालिटेटिव में आप देखिए कि एक्चुअल में क्या होता है कि हमको हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग क्वालिटेटिव रिसर्च? कितने लोग हैं यहाँ पे? सम ऑफ यू, आई थिंक 10%। ओके, मिक्स मेथड यू ऑल आर डूइंग। ओके, तो आपने जब सोर्सेज आपके प्रॉब्लम के स्टार्ट हुए तो पर्सनल एक्सपीरियंस से सोचा होगा आपने, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ लिटरेचर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि कई बार हम सोचते हैं कि अरे चलो ये इस पे वर्क करते हैं, लेकिन जब आप रिव्यू करते हैं तो लगता है अरे ये तो इस पे तो हज़ारों रिसर्च पहले ही हो चुके। इवन दीज डेज व्हेन आई एम गोइंग फॉर मूक्स, डेवलपिंग मूक्स, तो हम सोचते हैं कि हम ये टॉपिक लें। आप लोगों को बताना चाहेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि अभी हम 2 मूक लॉन्च करने जा रहे हैं और वो मूक्स हमारे उसी से रिलेटेड है, आपके रिसर्च और डिजिटल टूल से। तो आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कुछ सीख सकते हैं आप लोग। तो जब हमने मूक के लिए वो टॉपिक लिया तो हमें लगा कि सिर्फ हम ही ऐसा सोचते हैं, हम कुछ नया सोच रहे हैं, इनोवेटिव सोच रहे हैं। लेकिन जब हमने सर्च किया तो पता चला हम जो सोच रहे हैं और ये सोच तो पहले से ही हज़ारों लाखों लोगों की ऑलरेडी वहाँ इंटरनेट पे दिख रही है। तो वो कब होता है? व्हेन वी आर डूइंग रिव्यू ऑफ द रिलेटेड लिटरेचर, व्हेन वी आर सर्चिंग इन द गूगल। जब हम ये सब चीज़ें, तो फिर हमने जो टॉपिक ढूंढा, अभी लास्ट टाइम में हमने यूनेस्को का एक मूक बनाया तो बहुत खुशी हुई जब हमने देखा कि इस पे तो सच में कोई काम नहीं हुआ है। और वो टॉपिक था एजुकेशनल जर्नलिज्म पे। तो देखा ना उस पर कोई बुक है ना उस पर कोई वर्क है। तो ऐसा काम करने में बड़ा आनंद आया कि ऐसी चीज़ें आप ढूंढिए जो किसी ने, अगर आपने कोई टॉपिक ऐसा लिया भी है जो कॉमन है या वो है, उसमें यूनिक उसको कैसे बनाएं, उसकी भी कुछ टिप्स हम आपको देंगे कि उसको कैसे आप यूनिक बना सकते हैं। उसमें कैसे आप कह सकते हैं दुनिया को कि दिस इज़ ओनली माय वर्क। क्यों? क्योंकि उसमें टर्मिनोलॉजी आप ऐसी एक स्पेसिफिक यूज़ कर सकते हैं। फिर प्रीवियस रिसर्चेज, एग्जिस्टिंग थ्योरीज, रीडर्स फीडबैक, परफॉर्मेंस, इम्पॉर्टेंस, सोशल इशूज़, ये सारी चीज़ें हैं जो कि अलग अलग सोर्सेज हैं थ्रू विच यू कैन सेलेक्ट योर टॉपिक। ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं इसलिए हम इस पे नहीं जा रहे हैं। अब यहाँ पे आते हैं कि हम ये सब बातें किसके लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जो भी टॉपिक ले रहे हैं, अगेन आई एम कन्फ्यूज दैट वेदर इट इज़ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। बहुत बार कन्फ्यूज़न होता है। हमने उसमें
क्योंकि जनरली क्या होता है, हम लिख देते हैं, टॉपिक लिखा, कोलन लगाया और स्टडी लिख दिया, डिस्क्रिप्टिव हो गई। हमने इफेक्टिवनेस लिख दिया तो हमारी एक्सपेरिमेंटल हो गई, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, हमने एनालिटिकल लिख दिया तो क्वालिटेटिव हो गई, बट नो, ऐसा नहीं होता है। हम लोग बहुत स्टार्टिंग से क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको करना कैसा है। किसकी यहाँ पे प्योर क्वालिटेटिव रिसर्च है? क्वालिटेटिव आप में से? यस, कैन यू टेल मी योर टॉपिक प्लीज? केस स्टडी, ओके, गुड, ओके, ठीक है। तो हम आगे इस पे बात करते हैं कि जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, यहाँ आके आपका भी गला वो हो गया, खूब आइसक्रीम खाइए क्या? ओके, सिंपल, अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में कहें तो जब हम वर्ड्स पे काम कर रहे हैं, मीन्स न्यूमरिक एंड नॉन न्यूमरिक, दो बेसिक डिफरेंस है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के, कि जब हम नंबर्स पे, क्वांटिटी पे काम करते हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव, और वर्ड्स पे कर रहे हैं, वर्ड्स का मतलब क्या है, किसी के बिलीव्स, वैल्यू सिस्टम, जो ओपिनियन है, व्यूज़ हैं, इस पे वर्क कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि उनका व्यूज़ इस पे ऐसा ऐसा है, तो वो क्या है, हम उसको मेज़र नहीं कर सकते। यहाँ पे सीधा सीधा डिफरेंस किसका आ जाता है, मेज़रमेंट और असेसमेंट का। फिजिकल साइंसेस में आप जानते हैं कि एग्जैक्ट जीरो मिलेगा आपको, इफ़ आई टेल यू दैट जस्ट मेज़र दिस टेबल, यू विल गेट अ एग्जैक्ट नंबर, ठीक है। अगर हम आपसे कहेंगे कि पर्सनैलिटी या आईक्यू चेक करिए इस क्लास का या ऑन एन एवरेज, तो आपके पास एक एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। जितने लोग आप लोग वर्क करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन होगा। क्यों? बिकॉज इन सोशल साइंसेस व्हाट वी आर डूइंग, सोशल साइंसेस में क्या कर रहे हैं हम लोग, ह्यूमन बीइंग पे वर्क कर रहे हैं, सोसाइटी पे वर्क कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग के एक्सपीरियंसेस पे वर्क कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, तो इसको हम एक एक्सटेंट तक तो क्वांटिफाई कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स व्हाट वी आर डूइंग, वी कैन डू ओनली क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस सिंपल हमने इसमें कहा है, अभी जब हम प्रेजेंट सिनेरियो में बात करते हैं तो वी वर्क ऑन वीडियोज़, OERs, मूक्स, इस पे करते हैं, और हमको अगर इनकी एनालिसिस करनी है तो हम इनको क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं। हम आपको छोटे छोटे वीडियोस हम आप लोगों के लिए बनाते हैं, आपको उसका वो देंगे, हम वीडियो का लिंक भेज देंगे, तो आप उसमें देखिएगा। अगर हम आपको एक टास्क दे देते हैं कि हमने कॉपी राइट और कॉपी लेफ्ट एक छोटा सा वीडियो बनाया है, जस्ट एनालाइज दिस, तो जब हम आपसे कहेंगे डू एनालिसिस ऑफ दैट, तो आप क्या करेंगे, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पे उसको हमको जज करके देंगे। फिर हम आपसे कहेंगे नहीं, आप इसको रेट करिए, आप इसमें हमें 10 में से नंबर दीजिए, तो कोई 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से लेके 10 नंबर के बीच में दे सकते हैं। तब आपने क्वांटिफाई किया कि हाँ, 1 पुअर था और 10 हमारा एक्सीलेंट था, इसके बीच में आप हमको कहाँ रखते हैं, तो आपने उसी चीज़ को क्या किया, क्वांटिफाई कर दिया। तो इस तरह से ही हम जब रिसर्च करने चलते हैं, क्वालिटेटिव उसकी बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं सोचने के, समझने के। अब यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह से देखें कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का बेसिक डिफरेंस क्या होता है, एंड आई होप यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू ऑल दीज एस्पेक्ट्स। इसको हम बहुत चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इस पे चर्चा करेंगे तो आप बोर भी हो सकते हैं। अब देखिए, एक बहुत छोटा सा हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। आप बहुत सारे लोग कविताएं, शेर व शायरी, कहानियाँ सुनते रहते हैं। मान लीजिए हमने अपनी क्लास में, या हमने कोई एक ऐसी रिसर्च कर रहे हैं कि जिसमें हमने शायरियों की कुछ पंक्तियाँ होती हैं ना, 2-2 लाइन की जो शायरियाँ होती हैं, हमने आपको टास्क दिया या हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि हम इसकी एनालिसिस करेंगे और फिर इस पर आगे वर्क करेंगे कि इस पर व्यूज़ क्या होते हैं, क्यों ऐसा लोग सोचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग तस्वीरें क्यों खींचते हैं। तस्वीरें इसलिए खींचते हैं कि हमें फ्यूचर में हमारे पास स्वीट मेमोरीज रहें, यादें रहें। तो कुछ लोग कहते हैं कि तस्वीरें हम इसलिए खींचते हैं क्योंकि आईना हमेशा सच बोलता है। तो उसी पे ही अगर हम क्वालिटेटिव की, अगर इसको एनालिसिस की बात करें, तो देखिए उस पे ही कैसे क्रिटिकल एनालिसिस होता है। जब हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो वहाँ पे एक व्यक्ति कहता है क्योंकि आईना सच बोलता है,
इसलिए हम तस्वीरें खींच लेते हैं कि उस समय जो हकीकत होगी या स्वीट मेमोरीज होगी हम उस पर बात करेंगे। तो वहां पे दूसरा व्यक्ति उसी को कैसे एनालिसिस करता है, वो कहता है कि आईना कब किसको सच बता पाया है, आईना कब किसको सच बता पाया है, जब देखा दायां तो बायां ही नजर आया है। यानी जो बात हम बरसों से सुनते आए हैं कि आईना तो सच बोलता है, वो बात हमारी वहां गलत हो गई। ये क्या है? मीन्स वी आर डूइंग क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर या दोज पर्टिकुलर लाइफ। कोई एक बात जो बरसों से सही चली आ रही है उस पर हम किस तरह से उसके वैल्यू सिस्टम, उसके जो बिलीव्स हैं, जो ओपिनियन है, उसको चेंज कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम एक इसको जिस्ट फॉर्म में देखें, नटशेल फॉर्म में देखें, तो हम कह सकते हैं कि जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है? सब्जेक्टिविटी। क्वांटिटेटिव में ऑब्जेक्टिविटी, उसमें सब्जेक्टिविटी। यानी आपको हमने अगर रितेश जी को कहा कि आप पर्सनालिटी देखिए, तो हो सकता है जब वो उसकी एनालिसिस करें क्वालिटेटिव फॉर्म में तो उनको 4 लोग ज्यादा अच्छे लगे। क्यों? क्योंकि वो उनकी पर्सनालिटी से मैच करते हैं। वो कहेंगे नहीं, दे आर वेरी गुड बिकॉज दे आर एक्सट्रोवर्ट, दे आर नॉट सो गुड बिकॉज दे आर इंट्रोवर्ट। क्यों? क्योंकि आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो हो सकता है आपको वो अच्छे लगे हों। सब्जेक्टिविटी। तो इस तरह के कुछ खास चीजें, खास बातें हमारे क्वालिटेटिव रिसर्च में आती हैं। इसका डिफरेंस आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि फोकस ऑन रिसर्च क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या होता है। हम किसी के भी नेचर को, उसके इसेंस को, उसके फिनोमिना को, उसको जज करते हैं, उसको देखते हैं, उसकी डीप एनालिसिस करते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव में हम ऐसा नहीं करते हैं। हाउ मच, हाउ मैनी, नंबर्स में हम उसको वो करने का कोशिश करते हैं। अब इसमें बहुत सी चीज़ों को हम थोड़ा सा छोड़ रहे हैं। आगे आइए, इसको देखिए कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, व्हेन वी आर conducting qualitative research, what we are flexible। हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं जा सकते हैं। जैसे आप केस स्टडी कर रहे हैं, तो आपका नाम वर्षा, वर्षा केस स्टडी कर रहे हैं, तो केस स्टडी करने में आप एक व्यक्ति की कर रहे हैं या इंस्टीट्यूशन की? मल्टीपल। तो आपने मान लीजिए नंबर ऑफ ग्रुप ले लिया, आपने मान लीजिए सपोज यू आर डूइंग केस स्टडी ऑफ 5 पीपल, तो आप 5 लोगों की अगर केस स्टडी कर रहे हैं तो उसमें सब्जेक्टिविटी आने की संभावना काफ़ी कुछ हो जाती है। आप जब उनकी क्वालिटीज़ देखते हैं तो आप उसमें बहुत सारी चीज़ों को, जैसे क्या होता है, आज आप गए, आपने उनसे इंटरव्यू लिया, आप 10 दिन बाद गए, हो सकता है वही इंटरव्यू सेम लें तो क्या होगा, उसमें चेंज आ सकता है। इट डिपेंड्स ऑन देयर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑल्सो। फिर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है जब आप क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। तो इसके जितने स्टेप होते हैं आपके रिसर्च के, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में, क्वालिटेटिव में जितने भी स्टेप्स होते हैं आप उसमें उल्टा चलते हैं। आपने डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आप इसमें क्वांटिटेटिव में डिडक्टिव मेथड से चलते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं आप? फर्स्ट स्टेप क्या होता है डिडक्टिव मेथड का? क्वांटिटेटिव में, क्वांटिटेटिव में डिडक्टिव से चलते हैं। लेकिन हम क्वालिटेटिव में, आप केस स्टडी कर रहे हैं, आप सबसे पहले क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन, है ना, ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी आप इंडक्टिव से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सब कॉन्सेप्ट हम बहुत डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि लिमिटेड टाइम में बहुत चीज़ें, अभी आपको बहुत सारे टूल्स हमें बताने हैं। तो आप ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करते हैं और फिर आप लास्ट में अपने जो भी एनालिसिस करते हैं वो रिजल्ट आप प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपका एक जनरलाइजेशन हो। क्वांटिटेटिव में आप एक जनरलाइजेशन कर देते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस जो होता है इसका, सैंपल सेलेक्ट करने का, मेथोडोलॉजी का, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमने ये दिया हुआ है। अब इसके नेक्स्ट उसमें आते हैं कि यहाँ पर 3 चीज़ों को आप हमेशा बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। प्ले अ इन क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन। नॉलेज कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, अब यहाँ पे आते हैं। एक बार एक छोटी सी लड़की थी और वो जब वॉश बेसिन पे, 7 साल की लड़की थी, वो वॉश बेसिन पे हाथ धो रही थी, तो उसने देखा
कि जब हम हाथ धोते हैं तो ये क्या हो रहा है, ये पानी एकदम से नीचे क्यों नहीं जाता, ये ऐसे गोल गोल घूम के क्यों जाता है। तो वहाँ पे क्या हुआ, उसने एक एनालिसिस की कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सोचा उसने, लोगों से पूछा, नहीं आंसर मिला, तो उसने करते 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 एक बहुत लंबे समय तक रिसर्च की, और जब वो बड़ी हो गई तो उसने एक ऐसी रिसर्च निकाली कि हाँ इसका कारण है क्यों पानी ऐसे गोल गोल घूम के वॉश बेसिन में नीचे जाता है। उसी बेसिस पे उसने थ्योरीज डेवलप की। यानी क्वालिटेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, थ्योरीज डेवलप करते हैं, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। और उसने बताया फिर कि विश्व में कितना पानी है, विश्व में कितना पानी पीने योग्य है, और किस तरह से ज्वार भाटा आता है, जब फुल मून होता है तो पानी वो ज्वार भाटा ज़्यादा क्यों आता है। ये सारी चीज़ें उसने कैसे की, जब उसने उसकी डीप एनालिसिस की। यानी क्वालिटेटिव फॉर्म में जब हम वर्क करते हैं तो हम नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये नॉलेज कंस्ट्रक्शन इतना इजी नहीं होता है। लोग कहते हैं अरे क्वालिटेटिव में है ही क्या कि हम सिंपल पढ़ें और उसका वो लिख दें, लेकिन वर्षा जानती होंगी कि केस स्टडी करना कितना टफ होता है। अभी हमारे यहाँ रिसेंट एक रिसर्च अवार्ड हुई है ट्रांसजेंडर्स पे, उनका एजुकेशनल एस्पेक्ट देखा। तो जब वो बच्चा बता रहा था अपना कि किस तरह से उसने उस केस को स्टडी किया, और जो फर्स्ट उसके दिमाग में जो उसके लिए एक एटीट्यूड था, वो सोचता था कि अरे इन लोगों को तो पढ़ना ही नहीं, ये नहीं। लेकिन जब उसने पूरी एनालिसिस की 5 साल में उसको पता चला कि 1-2 बातों को जानने के लिए 5 साल लग गए जब वो उसमें इन्वॉल्व हुआ ऑब्जर्वेशन। यानी देखिए क्वालिटेटिव में कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती। क्वांटिटेटिव में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके 100% कंट्रोल में होती हैं। आप मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से डेटा को चेंज कर सकते हैं, हटा सकते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, और बहुत चीज़ें तो हम लोग आउट ऑफ द वे जाके कर लेते, बट देयर इज़ नो ऑप्शन इन क्वालिटेटिव। तो इसमें क्यों नहीं होती हैं, जस्ट सी यहाँ पे 3 चीज़ों को हम इन डेप्थ इंसाइट्स इनटू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर हमेशा आप देखिए, हम लोग हमेशा कहते हैं ना मूड स्विंग होते हैं, और मूड स्विंग होते हैं का मतलब कि आज हमारा व्यवहार ऐसा है, हो सकता है किसी बात पे किसी से कुछ कहा सुनी हो जाए। जैसे आज के ज़माने में तो कहा सुनी के क्राइटेरिया ही दूसरे हैं कि हमने उसको देखा वो ऑनलाइन थी और उसने मेरी मैसेज का जवाब नहीं दिया तो हमारा ब्रेकअप हो गया। गलती से हम स्माइली भेज रहे थे और वो रेड वाली स्माइली चली गई तो ब्रेकअप हो गया। तो क्या है, समय के साथ साथ कैसे चीज़ें चेंज होती है, हमारा माइंडसेट। यानी हम इतने डिपेंडेंट हो गए हैं इस टेक्नोलॉजी में कि हम ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ना भी चाहें तो शायद उतना इजी नहीं है। अभी हमने एक रिसेंट स्टडी की थी, जो इंटरनेट यूज़र्स होते हैं, जो इमोजीज़ को यूज़ करते हैं, उनका उनकी पर्सनैलिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप देखिए आज के दौर में हमारा इमोशनल एस्पेक्ट इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है कि आप अपने व्हाट्सएप मैसेजेस को कभी चेक कर लीजिए और आप अपने नियर और डियर वन के मैसेजेस को देख लीजिए। अगर किसी ने आपका बहुत प्रिय है, आप उसको रोज़ गुड मॉर्निंग करते होंगे ना, सब चुप है, नहीं करते। तो जब गुड मॉर्निंग मैसेज आता है तो उसमें इमोजी कौन सा बना के भेजा, वो बहुत फ़र्क डालता है कि नहीं डालता है। स्माइली भेज दी, ठीक है, अच्छा है। फ्लावर भेज दिया, थोड़ा और अच्छा है। एक हार्ट बना के भेज दिया तो बहुत ही अच्छा है। तो ये डिपेंड करता है आपकी फ्रेंडशिप को तराजू में तोलने लगता है। यानी एक सिंपल इमोजी भी कितना फ़र्क डाल रही है आपके माइंडसेट पे। इसकी क्वालिटेटिव अगर आपको स्टडी करनी हो तो इन डेप्थ आपको कहाँ तक जाना पड़ेगा। यानी यू आर इंटीग्रेटिंग साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स विद टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों का, क्यों हम लोग बहुत सोचते हैं, जब हम अपने स्टूडेंट्स को रिसर्च कराते हैं तो हमने देखा कि वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी पे कैसे हो सकती क्वालिटेटिव रिसर्च। बिल्कुल हो सकती है। कैसे कि हम इन एस्पेक्ट्स को देखें। आप देखिए हैप्पीनेस को हमने टेक्नोलॉजी से जोड़ के एक रिसर्च कराई, और हैप्पीनेस में हमने देखा कि हैप्पीनेस का इंडेक्स उन लोगों का ज़्यादा अच्छा था दोज हु वर यूजिंग सोशल मीडिया, and they were very satisfied because they were getting likes and comments in their Facebook post. और जिनको लाइक्स और कमेंट्स कम मिलते हैं वो खुश नहीं। क्यों? क्योंकि डोपामिन यानी एक हैप्पीनेस का हार्मोन रिलीज होता है जब आप देखते हैं कि आपको अप्रिशिएट किया गया,
किसी ने लाइक किया और कुछ लोगों ने अगर हार्ट वाला लाइक किया तो और खुशी होती कि नहीं, इन्होंने तो बड़े दिल से हमारी चीज़ों को अप्रिशिएट किया। और ख़ास तौर से जब आप अपना एकेडमी या कुछ अपने अचीवमेंट को उसमें लगाते हैं, तो ह्यूमन बिहेवियर यानी व्हेन यू आर डूइंग क्वालिटेटिव रिसर्च, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस ऑल्सो। आप जो अनुभव करते हैं, आप देखिए हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं तो एक बहुत लंबी रिसर्च आप पास्ट के बारे में, और पास्ट के बारे में आप कभी भी प्राइमरी डेटा को यूज़ नहीं करते हैं, आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है पास्ट के लोगों से। कैसे होता है? थ्रू सेकेंडरी सोर्सेज। अब आप कभी मान लीजिए किसी लिपि पे काम कर रहे हैं, आपने देखा देवनागरी लिपि, उसमें ऐसे ऐसे लिखा गया है, ऐसे किया गया है, उर्दू फारसी को आप पढ़ रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आप देखिए वहाँ पे कहीं ना कहीं जब आप उसकी एनालिसिस करते हैं तो आप उसको प्रेजेंट से जोड़ने लगते हैं, आप उसको अपने कास्ट रिलीजन उससे जोड़ने लगते हैं, आप उसको माइथोलॉजी से आप बहुत चीज़ों को उससे जोड़ते जोड़ते कहाँ तक पहुँचते हैं, आप सब्जेक्टिविटी आती है और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, यानी आज से 10 साल पहले से लेके आज तक में आपने सोसाइटी में जो अनुभव किया होगा उस बेसिस पे आपकी एनालिसिस रिजल्ट लेके आती है। आप जिस एरिया में रह रहे होंगे, आप जिस धर्म को मानते होंगे, आप जिस कास्ट के होंगे, आप जिस जेंडर के होंगे, आप देखिए कहीं ना कहीं आपकी उसमें क्या आती है, सब्जेक्टिविटी आ जाती है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च की जब हम बात करते हैं तो ये ऑटोमेटिक किस तरह से आपको रिजल्ट देती है, इस पे देखिए। फिर तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज सोशल फिनोमेना, वट एवर इज हैपनिंग इन आर सोसाइटी, कि कैसे हम सोसाइटी में चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे एनालिसिस कर रहे हैं। अब जो क्वालिटेटिव रिसर्च की, बिकॉज यू ऑल आर फ्रॉम सोशल साइंसेज, सोशल साइंसेज में हम जनरली इन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इन सब्जेक्ट्स में हम काफ़ी वर्क करते हैं। आप लोग जो मिक्स्ड अप्रोच भी कर रहे हैं तो इसमें बहुत स्कोप होता है, सोशोलॉजी, एंथ्रो, साइको एजुकेशन, हेल्थ साइंस, ये सब में हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च का स्कोप ज़्यादा होता है फिजिकल साइंसेस के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे हमने स्लाइड्स तो बहुत सारी आप लोगों के लिए बना दी थी, लेकिन हमें लगता है इन सब चीज़ों को बहुत डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें कि अगर आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस करनी, हाउ यू कैन टेक द हेल्प ऑफ डिजिटल टूल्स। आज आपके पास ऐसे ऐसे टूल्स हैं, ऐसे इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं जिसमें आपको, और ऐसा नहीं है, बिकॉज वी ऑल नो दैट कंप्यूटर्स एंड मोबाइल्स वर मेंट टू save your time, but most of the work or most of the time we are wasting on these two things only. तो हमको टाइम वेस्ट ना करके कैसे हम फ्रूटफुल रिजल्ट्स, जैसे हम अपने विद्यार्थियों को कहते हैं आप पेपर लिखो, आप सब कुछ करो, जल्दी जल्दी रेफरेंसेस भी ढूंढो, सब करो, और उनको अपने सामने बिठा के 10 मिनट में हम उनकी रेफरेंसिंग, साइटेशन, इंटेक्स साइटेशन डिजिटल टूल्स के थ्रू बिल्कुल परफेक्ट करवा देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम डिजिटल टूल्स यूज़ कर रहे हैं तो उनका जो बेसिक हुनर है वो उन चीज़ों को ढूंढने का, काम करने का जो रेफरेंसिंग स्टाइल है वो भूल जाएं। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो द बेसिक्स। जो आप देखिए, जो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होगा उसको बहुत नॉलेज होता है किस चीज़ का, उसको ये पता होता है कि एक चपरासी का काम क्या है, एक लाइब्रेरियन का काम क्या है, एक टीचर, उसको एक एक चीज़ आती है, तभी वो यूनिवर्सिटी को अच्छा चला सकता है। बशर्ते वो काम वो नहीं करते हैं, काम कौन करता है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन उनको अगर बेसिक्स ना पता हो तो वो कभी भी यूनिवर्सिटी को अच्छे से रन नहीं कर सकते। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वन क्वेश्चन। अभी देखिए आप लोग, यू ऑल आर फ्रॉम हायर एजुकेशन, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च का जो मेन मकसद होता है वो होता है नॉलेज कंस्ट्रक्ट करना, थ्योरी बिल्डिंग करना, ठीक है। अब एक बेसिक डिफरेंस होता है जो हमारे स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट तक पढ़ते हैं एंड स्टूडेंट्स दोज हु आर स्टडिंग एट डिग्री लेवल। दो तरह के विद्यार्थी हैं, हमारी स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन। नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू कैटेगरीज? क्या बेसिक अंतर क्या होता है, एक सेंटेंस में बता दीजिए। यस प्लीज। स्पेशलाइजेशन, ओके, ठीक है। एनीथिंग एल्स? ओके, वेरी गुड।
वी टीच एंड हेयर वी गाइड। बहुत बढ़िया। चलिए अब आपकी ही, आपका नाम? शुभम। बहुत बढ़िया बताया शुभम ने कि आप क्या करते हैं स्कूल लेवल तक। आप एज ए टीचर जनरली यू से कि वट एवर आई एम टेलिंग यू जस्ट गो एंड राइट इट डाउन इन योर एग्जामिनेशन, डोंट गो बियॉन्ड दिस, है ना। हम लोग कहते हैं कि जो कुछ पढ़ा रहे हैं बस वैसा ही लिखना, ज़्यादा इधर उधर की बातें मत लिखना। बट एट हायर लेवल what we do in general, we say to our students that just I'm giving you guideline, हम आपको एक हिंट दे रहे हैं, एक गाइडलाइन दे रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको इसमें अपने थॉट्स को जोड़ना है और फिर लिखना है। इट मीन्स अप टू इंटरमीडिएट लेवल स्टूडेंट्स आर द कंज्यूमर ऑफ नॉलेज, ठीक है, दे ऑल जनरली कंज्यूम द नॉलेज, बट एट हायर लेवल दे कंस्ट्रक्ट द नॉलेज। और हम अगर रिसर्च कर रहे हैं और हमें अगर नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना नहीं आता है तो हमारे हायर लेवल की डिग्री में पढ़ना पढ़ाना सब क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो वी शुड फोकस ऑन दीज थिंग्स ऑल्सो, वेदर वी आर डूइंग क्वालिटेटिव यूजिंग क्वालिटेटिव अप्रोच और क्वांटिटेटिव अप्रोच, वी शुड फोकस ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। आप पूरी इतनी मोटी थेसिस लिख के सबमिट कर देते हैं और अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका इसमें नॉलेज कंस्ट्रक्शन में क्या वो है, क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है, तो आप शून्य में चले जाते हैं। आपको समझ नहीं आता कि मैंने किया क्या है। फर्स्ट चैप्टर पूरा इधर उधर से उतारा, सेकेंड चैप्टर रिव्यू हमने इधर उधर से ले लिए, थर्ड चैप्टर मेथोडोलॉजी हमने सारी इधर उधर से करके लिख लिया, फोर्थ चैप्टर जो हमने डेटा कलेक्ट किया था उसी को एनालिसिस कर दिया। हमने किया क्या, यानी आपके पास आपके ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्या वो था, क्या फाइंडिंग थी, क्या ऐसी चीज़ थी कि आप बता सकें दुनिया को नहीं मेरी रिसर्च में ये चीज़ यूनिक है और ये हमने किया है, ये कोई दूसरा नहीं कर सकता था, ये सिर्फ हमने किया है। इट मीन्स देयर शुड बी अ कंपोनेंट ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन इन योर रिसर्च, इन योर थेसिस, इन योर ऑल रिसर्च वर्क। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट। जब हम स्पेशली क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज की बात हम ज़रूर करते हैं। अब आप इसमें देखिए कि जब हम क्वालिटेटिव के जो कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं, आप सब ने इसका आंसर हमें पहले ही दे दिया था, दैट इट इज़ एक्सप्लोरेटरी इन नेचर। वर्षा मैडम ने बताया कि हम वो कर रहे हैं, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम केस स्टडी कर रहे हैं तो एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम ऐसी ऐसी चीज़ों को कर रहे हैं। कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, हम रेफरेंस और कंटेक्स्ट पे बहुत जोर देते हैं उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव रिटन 2+2 या इफ़ आई हैव रिटन 1947, क्या उसका अपने में कोई मीनिंग है जब तक हम उसको कोई रेफरेंस और कंटेक्स्ट नहीं देते। 1947 मान लीजिए हमने दे दिया और उसके आगे हमने लिख दिया इंडिपेंडेंस डे ऑफ, इंडिपेंडेंस ईयर ऑफ इंडिया, तब क्या हो गया कि हमें हाँ समझ में आएगा कि उस ईयर का कोई मीनिंग है। क्लियर। तो रेफरेंस कंटेक्स्ट इसमें हम कैसे देते हैं, जब हम इसमें डीप एनालिसिस करते हैं। देयर इज सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी बिकॉज दिस इज देयर इज ह्यूमन फिनोमिना, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, ह्यूमन बिहेवियर। फिर इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर, होलिस्टिक अप्रोच। अब होलिस्टिक अप्रोच क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको फिर से बताना चाहेंगे कि जब हम होलिस्टिक की बात करते हैं, आप में से एनईपी पढ़ी है, एनईपी 2020 कितने लोगों ने पढ़ी है? वेरी गुड। बड़ा ऐसे हाथ उठा रहे हैं कि हाँ भी और ना भी, है ना, थोड़ा थोड़ा सुना है समझा है। उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट यही कॉन्सेप्ट आता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट। व्हाट इज दैट होलिस्टिक डेवलपमेंट? हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल राउंड डेवलपमेंट? आगे बढ़ा सकते हैं, ओके। लेकिन वहाँ पे पहले हम लोग कहते थे ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनालिटी, अभी हम कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट। दोनों में अंतर है क्या कुछ? कंफ्यूजन। आपके हायर एजुकेशन खूब क्वेश्चन पूछा जाता है इसका, क्यों? क्योंकि ये एनईपी में मेंशन्ड है। जी शुभम कुछ कह रहे हैं। हाँ
ओके गुड। हाँ, आप नाम बताइएगा। अंतरा, यस। ऑलराउंड डेवलपमेंट हम बोल सकते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, अलग से सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट जो होल वर्ड से होता है कि एज अ होल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें डिफरेंट फैक्टर्स एक साथ वो काम एक साथ करते हैं। ओके गुड, ठीक है। थोड़ा सा हम बता देते हैं। राहुल, यू आर सेइंग समथिंग? हाँ, होलिस्टिक डेवलपमेंट, जी मैम सर, होलिस्टिक डेवलपमेंट से हम ऐसे ये समझ सकते हैं, वी आर नॉट फोकसिंग ओनली स्कॉलिस्टिक डेवलपमेंट, इंक्लूड स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक डेवलपमेंट। ओके ओके गुड, ठीक है। देखिए, जब हम ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 3H। अभी पहले भी हमने बताया 3H मीन्स कॉग्निटिव, यानी मस्तिष्क का विकास। मस्तिष्क का विकास मतलब कि नॉलेज पार्ट। आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे, वेदर यू आर फ्रॉम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, आप अपने सब्जेक्ट का एक प्रॉपर नॉलेज है, दैट इज योर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लेकिन सिर्फ उससे तो काम नहीं चलता। कोई कितना ही ज्ञानी हो जाए, जीवन में सफलता तब तक नहीं मिलती जब तक आप ऑल एस्पेक्ट्स पे ध्यान न दें। यानी सेकेंड इज H, दैट इज रिलेटेड टू हार्ट, मीन्स योर इमोशनल डेवलपमेंट। You should be able to understand the emotions of yourself and others also. ठीक है। तीसरा होता है हैंड्स, डेवलपमेंट ऑफ हैंड्स मीन्स साइकोमोटर डेवलपमेंट। साइकोमोटर डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है कि आप अपने अंदर ऐसी स्किल्स डेवलप करें कि आप कल को अपना ब्रेड एंड बटर अर्न कर सकें। क्यों? क्योंकि आप कितने ही ज्ञानी क्यों ना हो, आप में स्किल्स नहीं है, आप बहुत अच्छे, आप फर्स्ट डिवीज़न B.Ed M.Ed सब कर लीजिए, लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो आपको जॉब पे इतनी आसानी से जॉब नहीं मिलेगी टीचिंग की। ठीक है, तो आप ऑलराउंड डेवलपमेंट तो ये हो गया। लेकिन जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट, आप इसको यू कैन रिलेट इट विद योर क्वालिटेटिव अप्रोच। जब आप उसकी बात करते हैं, यानी हम पंचकोशी शिक्षा की बात करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये 3H हमको मिलते हैं तो हम हैप्पीनेस फील करते हैं। ठीक है, यानी चौथा H हैप्पीनेस। यहाँ पर जब हम होलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं पंचकोशी शिक्षा, यानी कि सबसे पहला इसमें आता है फिजिकल डेवलपमेंट। यानी हम ये देखते हैं कि छोटा बच्चा है और हमें किस एज तक फिजिकल डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, इसकी बात हम बहुत उसमें नहीं करते हैं, ऑलराउंड डेवलपमेंट में थोड़ा बहुत करते हैं। फिर उसके बाद दूसरे, इसको हम कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट है, इसको अन्नमय कोश कहा जाता है। इसको अन्नमय कोश, यानी कि हम जिस तरह का अन्न खाएंगे उस तरह की हमारी बॉडी, और इस पे हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। आज की जनरेशन क्या है, ध्यान किस पे देती है, बस हमको अच्छा खाने को मिल जाए, बस हम अच्छा पिज़्ज़ा पास्ता बर्गर खा लें, बट दे आर नॉट फोकसिंग अबाउट द न्यूट्रिशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर फूड। तो जो आपका पहला अन्नमय कोश होता है वो डेवलप नहीं होता है। तो जब अन्नमय का यानी फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं है तो आप सेकंड पे कैसे जाएंगे, जिसको हम कहते हैं मनोमय कोश, मीन्स साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, व्हाट यू आर थिंकिंग, स्पेशली इट इज रिलेटेड विद द अफेक्टिव डोमेन, है ना, कि आप भावनाओं का विकास, आप देश के प्रति, अपने कलीग्स के प्रति, आप अपने वैल्यू सिस्टम को कैसे डेवलप करते हैं, अपने पेरेंट्स का आप सम्मान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अपने टीचर्स का, ये सारी चीज़ें उससे रिलेटेड हो गई। थर्ड हो गया इसमें आपका विज्ञानमय कोश, मीन्स साइंटिफिक, एवरीथिंग शुड बी साइंटिफिक, लॉजिकल। अगर कोई हमको कहता है कि आज के बच्चों से कह के देखिए कि किचन में चप्पल पहन के नहीं आता, यहाँ तो भगवान रहते हैं, मानेगा वो बच्चा? कतई नहीं। वो आपसे 10 बार क्वेश्चन करेगा, भगवान दिखाइए कहाँ पे हैं किचन में। जब आप उसको साइंटिफिक रीज़न देंगे कि नहीं आप चप्पल पहन के किचन में आते हैं, तो क्या होता है, उसमें गंदगी आती है, और गंदगी आती है तो क्या प्रॉब्लम आती है, ये सब आप एक्सप्लेन, तब वो मानता है उस बात को, यानी विज्ञानमय कोश। चौथा इसमें होता है एक हो गया आपका अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, एक मुझे याद नहीं आ रहा है, प्राणमय कोश, वो सेकेंड नंबर पे प्राणमय कोश, यानी कि आप फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ जो इंटरनल ऑर्गन्स या अपनी सांस को अच्छी तरह से लेना छोड़ना जान जाते। लास्ट इसमें आता है विच आई एम टॉकिंग अबाउट इन ऑल राउंड डेवलपमेंट, दैट इज हैप्पीनेस ओनली, है ना। खुश तो आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाए बहुत हो जाएंगे, कुछ को 10 रुपए भी मिलता है तो वो बहुत आनंदित अनुभव करता है। तो ये डिफरेंस है आपके होलिस्टिक अप्रोच में और ऑलराउंड डेवलपमेंट में, कि वहाँ हम हैप्पीनेस की बात करते हैं, यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, आनंद की, जिसको हम साल्वेशन पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ पे जब आप क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं जब उसको, तो आप देखिए इन डेप्थ आप होलिस्टिक अप्रोच की, कि आप स्टार्टिंग रूट से लेके
एकदम लास्ट तक कैसे पहुंचते हैं डीप एनालिसिस करके। ये एग्जाम्पल हमने सिर्फ इसीलिए दिया कि एक चीज़ होती है जो हम सरफेस पे करते हैं, एक चीज़ होती है जहाँ पे हम इन डेप्थ नॉलेज लेते हैं, एंड दैट इज़ योर क्वालिटेटिव अप्रोच। इसको वही लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हम बार बार वर्षा मैडम का दे रहे हैं कि जब वो केस स्टडी करेंगी तो उसको एक एक चीज़, जब वो अपना वाइवा देंगी तो एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगी कि यस आई नो एवरीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन और अबाउट दैट केस, जिसको भी इन्होंने एक केस के फॉर्म में लिया है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्वालिटेटिव अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच। फिर याद दिला रहे हैं आपको दैट इट इज रिलेटेड विद ह्यूमन बिहेवियर, एक्सपीरियंस एंड सोशल फिनोमेना। जब भी आप देखिए, आप स्टडी कर रहे हैं, आप ये 3 चीज़ों को जरूर ध्यान रखेंगे। नहीं रखेंगी तो आपकी क्वालिटेटिव जो अप्रोच आप अप्लाई कर रहे हैं, यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। अब यहाँ पे टाइम, हाँ, तो अभी इसको यहीं पे रोक देते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। I'll relate it with digital tools. First, I'll tell you about the digital tools which are related to the qualitative approach, and then I'll tell you about the quantitative approach. Okay. इसमें हैं, but they all are related. उसको हम continue कर सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अभी तो नहीं, इसमें एक्चुअली सब बता चुके हैं, वही चीज़ें रेपिटेशन है। ज़्यादा स्लाइड्स हम इसलिए बनाते हैं कि जिनका ध्यान नहीं भी जा रहा है तो इस पे ध्यान दे दें, जो हम समझाना चाह रहे हैं उसको समझ लें जी। तो इन सेकेंड हाफ आई विल टॉक अबाउट दिस। यस यस प्लीज। जैसे आपने बात करी कि क्वालिटेटिव रिसर्च में जनरली हम कहते हैं थ्योरी बिल्डिंग का प्रोसेस है, हाइपोथेसिस जनरेशन का है। तो किस पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि थ्योरी बिल्डिंग की स्टेटमेंट दे सकते हैं, कितना उस पे, जैसे आपने एग्जांपल भी साइट करा कि वो हाथ में कैसे उसने थ्योराइज किया, तो किस लेवल पे हम कह सकते हैं? तो फॉर देखिए, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर टॉपिक, देन सिचुएशन, देन योर वर्क, योर एनालिसिस। अभी देखिए, क्योंकि जो क्वालिटेटिव अप्रोच है, आपके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। आप एथनोग्राफिक करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल करते हैं, हिस्टोरिकल करते हैं, कई बार फिलोसफिकल करते हैं। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर वर्क, है ना। आपने 4 साल काम किया, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन आप थ्योरी कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हो सकता है बहुत सारे, हमने बताया ना, ये 3 फैक्टर्स हर जगह काम करेंगे। हो सकता है आप जिस चीज़ का, जो आप रिसर्च, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स थे, जो चीज़ें आप क्वेश्चंस लेके वहाँ गए थे, आपको उनका आंसर मिल ही नहीं पाया, लेकिन फिर भी आपने एक फ्रूटफुल 4 साल की जो रिसर्च की, आपने उसकी एनालिसिस प्रेजेंट कर दी। हो सकता है आपको एक ही साल में आप थ्योरी कंस्ट्रक्ट कर पाए, हो सकता है आप 10 साल के बाद भी ना कर पाए। इट डिपेंड्स ऑन टॉपिक, सिचुएशन, योर वर्क। ओके, so I'll continue after tea break. इसको तो ऑन ही रखिएगा। ये सर आप उसी में था। ज्यादा तो नहीं बुलवाया, लेकिन आपने जैसे ही इनका नाम लिया तो जरूर बुलवाया। हमारा लैपटॉप तो चला ही नहीं आपके, नहीं चला कैसे चलता है? सर लोडेड है ज़्यादा। कोई बात नहीं, अब हम उसी में सॉफ्टवेयर कर देंगे, उसमें दिखा देंगे। हो गया, ये करना होगा। ऐसा होता नहीं।